Good afternoon, everyone. I hope that you can hear me. Let us wait for some time. Let everyone join and then we'll start. Okay, I hope that my screen is there. Let me know whether you can see it or not. Okay.
So let us start. Try to share my packet tracer, as well as I would like to share the CCN lab manual. But before that, let me go with some basics of it, and then I will share it. See, whatever I will teach you here will be based on lab manual. Don't worry. Okay. So what we can do is we'll not go for each and every practical and check that this is the practical we should go for. No, what we'll do is we'll complete entire thing in a flow, and then we'll say that okay, we have done it, right? And then talk about the topics we have. PC લઈ જવાનું છે સર જોડે વાત કરી અત્યારે સર અને કશો વાંધો નહીં એમના લેબ ઇન્ચાર્જને તો હું કહી દઈશ કાલે રિપોર્ટ આપજો okay. Sorry for the disturbance. So that is what we'll do. Okay. So I hope that you have the idea about how can we configure a network, right? With having IP addresses available there, which IP address to choose, how to configure that IP address. I have already conveyed these things in last lab. I think in previous lab I was talking about this only, right? That how can you configure a simple network, as well as I don't know why, I taught you that spanning tree protocol just because the question was about which network. You all wrote that it was not taught. Before you raise a question, at least you must make sure that whether the topic was there or not. Even I asked you guys that you have the idea about spanning tree protocol or not. Only 4 marks we have asked that what is the use of it, and many time I told you that whenever the cycle is there, even practically what I did is I have done this thing. I don't know, at least you should have asked me that, sir, what is this topic is. If you don't know, let me just recall it. I did this kind of thing, right? And I told you that whenever a cycle will be there, even though it was there in PPT also it was there. Okay, I did this kind of thing. I was explaining this, that okay, if the cycle is there, one of the link will be always off. Okay, to make sure that there should not happen a cycle. This is where we are using this. But I don't know why you raised that question. I didn't get it. Okay, but it was kind of the question. So if you think that the question should be like whatever is there, the header of the PPT, no. The question may be kind of question where you are just asked to make sure or to write that how does protocol is working and what is the use of it, why do we need it, right? This is what the question was. So let me come back to the topic we are going to discuss today. So today I will show you that how can you build a simple network, as well as how to choose the IP address there. Okay, whatever the IP address is given to you, how to choose it, and how to decide that which IP address we should use for a network ID, which IP address we should use as a host ID, which IP address we should use. Okay. So for host, for network ID, for any kind of use, which IP address we should go for, and how to configure the IP address in the host, as well as how to configure the IP address as the router, as well as how to configure routing things, right? Also I will talk about the thing where servers, right now I think we are going with IPv4 header, right?
I'll talk about that header also. I'll show you that how does that work. That IPv4 header, what will be there. Each and every term I will show you, and how they are exchanging the data with each other. Okay, I'll try to show you that. So assuming that you know what is the use of switch, hub, router, and at which layer they are working. Assuming that. Let me take a new file. I'll create simple network here. Okay. So before that, let me talk about a thing that if you go with class full IP address, you know number of classes are there. Class A, class B, class C, class D, and E. What is fixed thing whenever you are having a class full IP address? The fixed thing is that that IP address is having network bits, or we can say subnet mask, which is fixed. If you say that if it is class A, I'll say that okay, it must have 8 network bits. If we talk about class B, say that okay, 16 network bits. If you talk about class C, we'll say that okay, it must have 24 network bits. Okay, D and E, as you know, we will not talk in terms of network bits and so on. So class A, class B, class C, which is fixed. And normally, when you assign an IP address to a machine, what will be fixed is the subnet mask, which is actually nothing but network, know how many network bits we have used. So subnet mask will be 255.255.255.0 in class C. If you take class B, then class B subnet mask will be 255.255.0.0. If you take class A, 255.0.0.0. This is fixed. Okay. And these bits, subnet mask actually is depend that how many network bits you are using to represent the network. Okay, so all other bits will be host bits, if I'm not wrong. Okay, so using number of bits, host bits, you can represent number of hosts. So if you have 8 bits, this is done in classroom. But again, just to recap this, just to reverse your mind that this is the idea we are going to use here. 8 bits are there. What we can say that using these 8 bits, I can represent 2 raised to 8 different numbers. Okay, 2 raised to 8. And when we go for 2 raised to 8, it is nothing but 256. So if we start from 1, that is going to be 256. The maximum number we can have is 256. Okay, so if we talk about number of hosts, we can identically represent that. Okay, we can identify each and every host with a unique number. Then we can say, okay, 256 hosts are there. But from that, also I told you that first number you'll always use as a network ID. You'll not use it. And last number you'll use as a broadcast ID. I'll try to show you that today. Right? That also you will not use. You'll say that from 256 we are going to use 2, or we can represent 254 host identical. And first and last IP address, first IP address. See, when you go for any question of submitting, they will always ask you that what will be first IP address and last IP address. So first IP address is nothing but your network host. And when someone asks you that what is going to be the first IP or valid host IP address, in that case you need to avoid first network ID, and then the second whatever you can assign to the host, you can answer it as a host IP address. Right? Hope that is clear.
So now I will create a simple network, and then we will try to analyze. What I mean by analyze, we will try to see whether it is working correctly or not, and whether it is sharing the things we are learning right now or not, or whether it is creating a frame the way we have talked about or not, or whether it is adding that IPv4 header or not, the terms are there or not, what is the meaning of each and every term, or where it is answering, right? So let's go. I'm taking simple router here. Okay. I should not take a router right now, but just to uh, connect to network there, and then I want to create doing slow. Yes, two switches are there. One switch is here, one switch is here. Now I would like to have number of hosts there in each network. So I'm taking only, just for sake of simplicity, I'm taking three hosts here and three hosts here. I don't want to assign anything right now. I just want to show you that how does it work and how can you build a network in a packet trace. And another host, right? Three hosts are there. Let me speak the device. Just a second. Okay, I'm joining by another device which is at least faster than this. Okay, but till then, what you can do is just let me know that if I'll create this kind of network there. Okay, I'm giving you network ID. Let me know that if I take a network ID here, of, let me take easier 195.3.2.0 slash, then this is the network ID of this network. Okay, and here I'm writing here 195.3.3.0 slash 25.
You just write the answer in chat box that how many hosts I can represent in this network, how many hosts I can represent in this network. Just let me know this. If I have network ID 192.193.3.0/25, what it means? Okay, in both the networks, we'll have 128, 128 IP addresses available. From that, we'll use first IP address as a network ID and last IP address as a broadcast ID. Okay, so we'll have 126 hosts in both the networks. So that was the basic thing, right? So now I go to Packet Tracer. Let me share my screen. This machine is faster
and the older one. This machine was actually reserved for data requirements, so couldn't use it at 2:30, but now it's free. So let us start. Okay. So entire topology, if we don't need it, mother, let me go for a new file. No, not at all. So one router I have taken, and I had taken 3 PCs here. Right? Let me share my screen. I don't know whether I have. Yes, I'm sharing it. 3 PCs here. 3 PCs here. Just for a simple scenario, I'm going for it. Right? And now if I want to connect number of machines together of the same network, I need a device which can at least make a connection or make them to communicate with each other. That is what I need. Okay. So in that case, what can I do is I can use switch or I can use hub. Okay. Whatever data link layer device is there, which is actually allowing you to connect more machines together. Okay. So if I go here in packet tracer case, I have normally I can go with switch. So I'm taking switch from here. Okay. Right now I'm just avoiding hub because I want to show you messages from in form of frame as well as in form of packet also. Okay. And then I should connect these devices with switch. So what you can do is you can buy an Ethernet cable category 5 or category 7, and then you can create straight through cable or crosswire cable. When the devices are different, you can take straight through cable. So this is copper straight through cable. See, this is automatic. If you go for this is console, and this is copper straight through cable. I'll pick up copper straight through cable and see if I will create it, then I'll connect RJ45 connector there. Then I know that where should I insert that RJ45, right? I will not insert it in USB port. I will not insert it in RS232. I will not insert anywhere else. I will insert it in fast Ethernet. So I'll select here fast Ethernet. I'll select here fast Ethernet. And see, if I go for simulation mode, you see, when I go for fast forward, or they are actually communicating with each other. Okay. So one message is going to a machine, STP, spanning tree protocol, right? Kind of message. So before building a connection, it will at least pass a message. So they are sharing or their information. Okay, and then they will build a connection. Again, let me. If you are in hurry, you can take this automatic cable if you don't want to. But basically, I'll suggest you that first you go with fast Ethernet cable. So at least you will come to know that which cable I should use to connect devices. Okay, now the things were like this. I had 193.3.3.0/25 and 193.3.2.0/25. Why I have taken this IP address, I'll tell you that. Okay, if you are in hurry, what you can do is you can click on this fast forward timer. So ये क्या होगा कि connection build हो जाएगा automatic, right? Select this. Okay. Now I have not assigned any IP address here, and I'm given this network ID only. Okay. So based on this network ID, I can say you that this network ID says me that your IP address will start from 3.3.0 and it will be up to 128 because /25. If it would have been suppose if I had /24, in that case my IP address is will be lasting from 0 to 120 0 to 254 255.
right? Same thing here. If my IP address was 193.3.2.0/24, in that case, I would have one zero say like a 255. Okay, but as it is /25, it means subnetting has happened, and I have the authority to use 0 to 128. Right, 25 bits are fixed, and I have only seven remaining bits, last seven remaining bits to represent host. So I can say that okay, from 0 to 128, it's my IP addresses or block of IP address. So I can assign. So I'll go here. I'll click on PC, IP configuration, and here there are two kinds of IP configuration you can uh, use: DHCP and static. DHCP is dynamic host configuration protocol. Uh, Learn it at application layer. What you do is, if you don't want to assign static IP address, and if you want a server to assign IP addresses to your host, in that case you can use DHCP. So what you can do is you can configure a server which is DHCP server, which has the authority to assign IP addresses to the machines. In that case, your machines, whenever whatever your machine is there, if it needs an IP address, it can request to your DHCP server, and DHCP server in turn reply with IP address, okay, valid IP address. We will go with the static IP address. So we know that 193.3.3 up to this it is fixed. From 0 onwards, I can go with it. So I can take 1 to 255. So I'll take 1. But as I told you, that if you want to connect it with the different network, you keep the first IP address reserved for gateway, okay, default gateway. But it is not fixed. You can take any IP address. So right now I'll take 1 here, and I will not keep that as reserve. Okay, but that is better practice. Now subnet mask, as you see, it is 255.255.255.0. By default, it will take 255.255.255.0. But as we know, that is not 255.255.255.0. It is something else. So we can change it manually, because as I told you that it will take in form of class full IP addressing. In class full IP address, 193 represents class C. In class C, the subnet mask is by default 24, and so that it has taken by default 255.255.255.0. But it doesn't mean that we cannot change it. We can change it, and we need to change it. So when I write 1, you see, if I keep this as 0, what happens? It is done. And now you see, when I keep my cursor here, you see port, fast Ethernet, and IP address. You look at the IP address. What is IP address? 193.3.1/24. Okay. And if I change it as 128, because I know it, right? If you have taken 25 bits as a network bits, then first 8 bits will be 1, second 8 bits will be 1, third 8 bits will be 1, and fourth 8 bits from that first bit will be only 1. And that 1 followed by 70, it is nothing but 128. So I did it. And now you see, now if I keep my cursor here, now you see what is subnet mask? It is /25. Right? This is how, if you are going for subnetting, this is how you can do it. Right? So again, now desktop IP configuration 193.3.3.1/2 subnet mask 28. I hope that is clear to you now. And here also same thing, 193.3.3 subnet mask 128. Okay. After doing this, when you assign one IP address to a machine, what you can do or what you can expect. Okay. So by assigning the IP address, what you can expect is that machines within the network must communicate with each other.
So after making this network, at least you can check it. So अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज एक से एक भेज रहा हूँ एंड आई एम चेकिंग दैट वेदर इट इज कम्युनिकेटिंग और नॉट. बट व्हेन यू आर ऑन मशीन, तो आप क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे. ओके, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके यू विल राइट दैट पिंग कमांड. ओके, पिंग फ्रॉम पीसी 0 टू पीसी 1. पीसी 1 का आईपी एड्रेस मुझे मालूम है, तो मैं लिखूंगा दैट आईपी एड्रेस 193.3.3.2. You send a ping packet. So now you see messages are created. Now let us look at the messages. तो ये एक चेक करूंगा ARP मैसेज और एक है ICMP मैसेज. ARP मैसेज अभी के लिए मैं जस्ट अवॉइड करता हूँ बिकॉज यू लर्न इट सून. बट ICMP आज सर वाज टॉकिंग अबाउट इट. ICMP से आप नो इट इज when you want to go for error reporting at network layer, तो आप ये ICMP यूज करते हो. So I'll open it ICMP message. Layer 3 protocol, IP header, source IP address, destination IP address, and type of message is this. Let us look at this header. PDU मतलब क्या है? PDU format. PDU मतलब protocol data unit. Okay, तो PDU में आप बोलो first physical layer. What is PDU? तुम बोलोगे कि उसका unit क्या है? Data unit. And we'll say that every data is known as bit at physical layer. So PDU for data physical layer, you can say bits. PDU for data link layer. So आप कैसे बात करते हो? When you have a data at data link layer, you'll say that it is in form of frame, right? When it is at network layer, we'll pronounce it as packet. So PDU for network layer, it is packet, protocol data unit. Okay, so ये रहा आपका PDU. IP क्या है? IP प्रोटोकॉल. तो उसमें आपने हेडर ऐड किया हुआ है. ये पूरा आपका डेटा है, ये रहा आपका डेटा, राइट. उसके ऊपर ICMP और उसके ऊपर आपका हेडर. लेट्स सी, पहले 4 बिट है वर्जन, क्या रहेगा? वर्जन 4. हेडर लेंथ, यू नो नाउ. ओके, व्हाट इज हेडर लेंथ? DSPC ये सर्विस के लिए है, किस कौन से टाइप की सर्विसेज है? टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट, ID, फ्लैग्स, फ्रेगमेंटेशन, ऑफसेट, देयर इज नो फ्रेगमेंटेशन. मैं आपको ये भी शो कर दूंगा. ओके, TTL, टाइम टू लिव, कितने होप तक वो अलाइव रहेगा, प्रोटोकॉल, चेकसम, सोर्स IP एड्रेस, destination IP address and data variable length. In this form it will be, right? हर एक बिट को आप चेक करते जाओ, हर एक बिट में क्या लिखा है, क्या क्या चीजें रहेगी, हर एक चीज यहाँ पे होगी. ओके, अभी कम्युनिकेट करता है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं. ओके, सो मैं फिर से रियल मोड में आ जाऊँ. पिंग मैंने जो लिखा था उसका, यस, ये हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है. यू सी, पहला जो रिप्लाई आया, ये आया इट इज इन विद इन 3 मिलीसेकंड. ये जो आ रहा है विद इन 1 मिलीसेकंड. ये जो आ रहा है विद इन 1 मिलीसेकंड. ये जो आ रहा है विद इन 1 मिलीसेकंड. तो आपका जो पहला कम्युनिकेशन रहेगा उसमें हमेशा देर लगेगी, जैसे नॉर्मली. व्हाई? बिकॉज इन फर्स्ट पैकेट, फर्स्ट कम्युनिकेशन, इट गोज टू स्विच एंड देन स्विच ब्रॉडकास्ट इट. ओके, एंड देन whatever the machine, destination machine is, will reply you back. तो आपको वो मैसेज आ रहा है. तो उसमें फर्स्ट टाइम व्हेन यू बिल्ड अ कम्युनिकेशन, इट विल टेक टाइम. उसके बाद it will easily communicate because it knows that where should I go, right? तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, सक्सेसफुली आ गया. 33.2 से आपको रिप्लाई भी आ रहा है. ओके, तो मशीन आर कम्युनिकेटिंग. एक ही मशीन का चेक किया, बाकी सबका आप चेक कर सकते हो. तो उसमें आप मैसेज लेके may check whether yes, successful. Okay, right, this is done. Let us go for this. Yes, can anyone tell me for this PC4 valid IP address? नेटवर्क आईडी मैंने लिखा हुआ है, देख लो, ये रहा.
valid IP address for PC4. Nothing? Okay, very good. These all are valid. Very good. Yes, yes. Right. Okay. So कोई भी आप ले लो from 3.3 से लेके 2.1 से लेके 193.3.2.1 से लेके 127 तक सभी वैलिड है. राइट. चलो मैं लिख लेता हूँ 193.3.2.1 ले लेता हूँ. Should I make any change here? Yes. Okay. मैं कर लेता हूँ 128. अब जैसे आपको अभी समझ में आ रहा है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से इसको कॉपी कर लेना है आपको. जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है या तो इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी से. राइट. फिर एक मशीन पे लेते जाओ. सिर्फ आपको होस्ट नंबर ही बदलना है. ये तो आप होस्ट नंबर बदल दो सिर्फ 128. Those who are there in same network, सबका नेटवर्क आईडी सेम रहेगा एज वेल एज सबनेट मास्क सेम रहेगा. राइट. अब ये एवरी मशीन मस्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ओके, देख लेते हैं. by taking a message, let me pass the message from PC4 to PC5. Okay, one more thing before I go with network communication. Suppose I want to pass a message of different length. Okay, suppose length कई जो predefined length है उससे कई, तो I can go with this complex PDU. So let me pick up that complex PDU. PDU is nothing but a message. Okay, तो ये एक मैसेज मैंने लिया PC4 में से. तो मैं पिंग नहीं भेजना है, मुझे कुछ और भेजना है. अदर में ले लेता हूँ. ओके, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मैं ले लेता हूँ PC3 का, बिकॉज आई वांट टू शो यू समथिंग. 193.3.2 डॉट था, ये 2 था 2. ओके, व्हाट आई वांट टू शो यू इज MTU, you know that. टाइम टू लिव ये है. टाइप ऑफ सर्विस ये भी रहेगा. स्टार्टिंग सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन. यस, साइज में कुछ ये बीट्स में रहेगी, तो मैं कुछ ले लूँ, कुछ इतने बीट में ले लेता हूँ और मैं मैसेज पास करता हूँ. लेट मी मेक श्योर दैट आई शुड बी देयर इन एंटर द सोर्स पोर्ट. हाँ, ये रहेगा 1029. ये पोर्ट आईडी है प्रोसेस का, तो डोंट वरी अबाउट इट. 028 मिनिमम वैल्यू 0 और their minimum value for the time. Yes, one short time. ये ले लेते हैं 1 second. Okay, we don't. Okay. Am I on simulation mode? Or yes, I'm in simulation mode now. पिंग को ही ले लेते हैं. 193.3.2.
2 को भेजना है, फ्रॉम 193.3.2.1 से भेजना है। M2 सीक्वेंस नंबर आप 1 ले लो अभी के लिए, साइज हम लोग ज़्यादा कुछ ले लेते हैं 1000 और वन शॉट टाइम 5 सेकेंड्स। क्रिएट PDU, फिर से हम लोग चेक करते हैं उसको, कैप्चर एंड फॉरवर्ड। ओके, ये जनरेट हुआ। I have created it, इससे क्रिएट कर लेता हूँ मैं। What I want to show you, EQD कर लेते हैं, 1 second. It is created, and when I forward it, okay, this many packets are created, right? Why this many packets are created? Let me click on at least one of the packet. Okay, what is happening is, see, first packet, second packet, third packet. अब मैं उसको कोई भी एक पैकेट को क्लिक करता हूँ, and then inbound PDU and outbound PDU. See, now you have flag as well as ID number as well as fragmentation offset. What it has, that machine has created, that it has created number of fragments of one packet. Okay, because the size was more than MTU. Okay, so ID number हर एक का सेम रहेगा, पर एक ही चीज जो मोर फ्रेगमेंट और नॉट। ओके, तो ये अभी लास्ट फ्रेगमेंट है आपका, तो वो 0 हो गया। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के साथ आपको कुछ वैल्यू मिली हेक्साडेसिमल में, अब बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि उसकी क्या वैल्यू है, राइट। तो टोटल लेंथ आपको उस हिसाब से मिल जाएगा, पूरा ये लास्ट है या फर्स्ट है क्या था वो सब आपको मिल जाएगा। फिर से अगर स्टार्ट करते हो, ये देखो पूरा हो रहा है, हर एक पैकेट को आप देख सकते हो। फॉर एवरी पैकेट यू विल हैव फ्लैग, ओके, मोर फ्लैग, फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो आपके पास 1 मोर फ्रेगमेंट इज देयर। ओके, जो लास्ट होगा उसमें फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। इसमें भी अगेन स्टिल वी हैव 1 मोर फ्रेगमेंट, स्टिल वी हैव 1 मोर फ्रेगमेंट। ओके, और ये वैल्यू क्रिएट करती जाएगी। तो इफ यू हैव फाइनली उस मैसेज उधर पहुंचेगा विद विद विथ नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स विथ इट। ओके, तो पूरा एक ही में नहीं जाएगा, बट बहुत सारे मैसेजेस रहेंगे उसमें, और ये जो लास्ट फ्रेगमेंट आएगा उसमें लिखा होगा कि भाई दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट। ओके, सक्सेसफुल क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज आई हैव टेकन पिंग, एंड पिंग में इतने सारे डिटेल नहीं रहती, तो कम्युनिकेट नहीं करेगा, राइट। बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। ओके, सो ये नेटवर्क क्रिएट हो गया, ये नेटवर्क क्रिएट हो गया। नाउ आई वांट टू मेक दिस 2 नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो मैं राउटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ओके, सो बिफोर लेट मी डायरेक्टली कनेक्ट इट, कि वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, आई शुड हैव द आइडिया। तो चलो मैं उसको डिलीट कर दूँ, एंड लेट मी टेक डिफरेंट डिवाइसेस, स्ट्रेट थ्रू केबल, पास इथरनेट 0/4, और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है गीगाबाइट इथरनेट। तो ये रहा पास इथरनेट, और यहाँ पे जो है 0/1। तो यहाँ अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो है वो 0/1 है, और ये जो है वो 0/0 है। ये खत्म हुआ। देन आई नीड टू कॉन्फ़िगर IP address here as well as here. Whenever it is network layer device, it requires one IP address. Okay, okay. तो IP address for 0/0 will be of this network. मैंने already आपको बोला है। Okay, IP address for this will be of this network. मैंने वो लास्ट टाइम आपको बोला था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो आपका जो पोर्ट है, द पोर्ट ऑफ द राउटर इज कनेक्टेड टू वॉट एवर नेटवर्क, वो उसी नेटवर्क का IP एड्रेस लेगा। यहाँ पे जो नेटवर्क है, यहाँ पे जो पोर्ट है, इट विल टेक द IP एड्रेस ऑफ दिस एंटायर नेटवर्क। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। ओके, सो मैंने इसको दिया है 3.1, इसको दिया है 3.2, इसको दिया है 3.3, तो इसको मैं देता हूँ 3.4। तो कैसे
दे सकते हैं, यू गो टू राउटर, इन द राउटर रिमाइंड मी लेटर, इन राउटर यू गो टू config, in config you go to इंटरफेसेस में आपके पास दोनों रहेंगे, गीगाबाइट 0/0। तो ये रहा आपका गीगाबाइट 0/0 आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं लिखूंगा 193.3.3.4 टैप करके मैं सबनेट मास्क दे दूंगा। तो जब भी मैं सबनेट मास्क देता हूँ मुझे फिर से याद रखना है कि आई शुड टेक 128। अब आई सजेस्ट यू दैट यू गो फॉर दिस। सी ये क्या हो रहा है, देखो इनेबल हुआ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये सब छोड़ दो। आईपी एड्रेसिंग क्या लिखा, 3.3.3.4 255.255.255.0 और फिर मैंने जैसे 128 लिखा उसने 128 करके कमांड रन किया। तो ये कमांड रन हो रहा है, मैं आपको शो करूंगा ये कैसे वर्क करता है, पर ये 128 आपको लेना है। ओके, जैसे ये कर दिया डजंट मीन कि ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये ऑन करना है पॉट स्टेटस। जैसे मैं ऑन करता हूँ देखो ये ग्रीन हो गया और यहाँ पे ऑरेंज। नाउ दे विल कम्युनिकेट एंड नेगोशिएट एंड बिल्ड द कनेक्शन। सेम थिंग, मैं फिर से उसी राउटर पे कॉन्फ़िग में जाना है एंड फास्ट इथरनेट 0/1। तो फास्ट इथरनेट 0/1 पे यहाँ का नेटवर्क लेना है, राइट। तो ये है 193.3.2.0। मैं देख लेता हूँ क्या क्या आईपी एड्रेस मैंने दिए इधर। तो 2.1 इधर दिया है, 2.2 इधर दिया है, 2.3 इधर दिया है। सो आई कैन गो विथ 2.4। 2.4 सबनेट मास्क में ले लूंगा 128 और इसको कर दूंगा ऑन। इट विल टेक सम टाइम। Fast forward, right? So now all links are looking at green. We'll say that okay, looking kind of green signal is there. Now we can pass the message. Okay. Let's go to simulation mode, which is our favorite mode. From any of the machine, you can pass a message. I've taken a message here from PC1 to PC3, which is at different network. Let's see which kind of message it is. It is ICMP message. Let's see what is there inside it. तो उसमें अभी ICMP मैसेज लेयर 3 का जनरेट किया है उसने। उसमें क्या लिखा है, तो ICMP में अभी तक क्या लिखा है, सॉरी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टाइप ऑफ मैसेज ICMP कोड, ये सीक्वेंस नंबर 2 है, नथिंग एल्स, इतना ही लिखा हुआ है। चलो फॉरवर्ड करते हैं। कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एरर? मैं फिर से उस पर क्लिक करूं तो वो मैसेज जनरेट हो रहा है पर वो डिस्कार्ड कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गेटवे, वेरी गुड आयुष, बिकॉज इट डजंट हैव गेटवे। गेटवे का मतलब क्या है कि उसको डिफॉल्ट गेटवे देना चाहिए। किसके लिए? टू गो आउटसाइड ऑफ योर नेटवर्क। उसको मालूम होना चाहिए कि व्हेन आई वुड लाइक टू गो आउटसाइड ऑफ माय नेटवर्क, वेयर शुड आई गो, और मैंने वो ही नहीं दिया है उसको। देखो गेटवे में नो नॉट सेट, डीएनएस में नॉट सेट, लाइन नंबर में नॉट सेट, आईपी एड्रेस मैंने सेट कर दिया। ओके, बट गेटवे, तो गेटवे क्या आएगा? चलो बोलो गेटवे क्या आएगा? PC0 का गेटवे क्या आएगा, PC1 का क्या आएगा, PC2 का क्या आएगा? मैं लिख दूं आपके लिए। मैंने यहाँ पे 193.3.3.4/25 आईपी एड्रेस दिया है और इस साइड पे मैंने 193.3.2.4/25 आईपी एड्रेस दिया है। गेटवे क्या आएगा? चलो
ओके, हर एक पीसी पे यहाँ पे जो डिफॉल्ट गेटवे आएगा वो सेम आएगा। कौन सा आएगा? जो मैंने यहाँ पे, वेरी गुड फैनी, जो भी मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया होगा वो तो आएगा 193.3.3.4/25. What it means, whenever you want to go outside of your network, you have a router जहाँ पे हमने network layer device दिया हुआ है. You can connect to that network layer device and then network layer device will find out the path or way for you. Okay. तो हम उसी का आईपी एड्रेस दे देते हैं, राइट? तो गेटवे में आपके पास हर एक के गेटवे में डिफॉल्ट गेटवे में आएगा 19 4, हर एक में दिस साइड ओनली। आप उसको कुछ भी ले सकते हो जो आप इजीली याद रख पाओ, वो ले सकते हो आईपी एड्रेस। तभी मैं ये करता हूँ कि फर्स्ट आईपी एड्रेस टेक एज ए डिफॉल्ट गेटवे। मैं हमेशा याद ही रख लेता हूँ कि फर्स्ट आईपी एड्रेस में डिफॉल्ट गेटवे में। अभी मैंने उस साइड पे कॉन्फ़िगर नहीं किया है, चलो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। अभी दो टाइप के मैसेजेस जनरेट हुए, ARP and ICMP. I'm not interested in ARP right now. We'll learn it, don't worry. It is just to make sure that कौन सा आईपी पहली बार ब्रॉडकास्ट हुआ, इसका रिप्लाई आया, उस रिप्लाई में हम लोग देख लेते हैं। देखो ये हुआ मैक आईडी ऑफ दिस और मैक आईडी ऑफ दिस। ये राउटर का मैक आईडी है, आप याद रख लो 0000030, लास्ट में 17D है। ये कुछ राउटर का आईपी एड्रेस है। देखो राउटर से आपको सोर्स आईपी एड्रेस उसका है 3.4, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपका है। ठीक है, तो रिप्लाई आया, हमने वो रिप्लाई रखा, फिर हमने कुछ मैसेज जनरेट किया है आईसीएमपी टाइप का, और वो आईसीएमपी मैसेज हम भेजते हैं। तो उस मैसेज को देख लेते हैं यहाँ से ही कि उसने क्या लिखा। ये देखो ये स्विच का है, या ये देखो किसके लिए है, कहाँ से लिखा हुआ है। ये 3.3.2 से लेके 3.2.1 को भेजा है। ओके, 193.3.2.1 को भेजा है। ओके, विच इज इनसाइड अवर नेटवर्क और नॉट। ओके, आपने 3.4 लिखा है, तो आपका जो मैसेज जा रहा है वो डायरेक्टली उसी नेटवर्क के दूसरे पोर्ट पे जा रहा है। व्हाट इट मींस दैट एक राउटर के पास पूरा राउटिंग टेबल रेडी रहेगा और वो राउटिंग टेबल में उसको मालूम होगा कि दूसरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है। ये जा रहा है, उस राउटर ने डिसाइड किया कि भाई अभी मुझे ये नेटवर्क में भेजना है। तो आपने अभी कोई डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे नहीं दिया है, इवन दो द मैसेज विल बी स्प्रेड। सबको मिल जाएगा, इसको मिला, उसने देखा ओके दिस इज माय मैसेज, पर जो जिसको रिप्लाई करना है उसका आईपी एड्रेस आपके पास है, बट आपके पास डिफॉल्ट गेटवे नहीं है। अब देखो डिफॉल्ट गेटवे में मैसेज पहुंचा फिर भी ये पहुंच नहीं पाएगा, बिकॉज वो मैसेज में कुछ भी लिखा नहीं होगा कि भाई माय डिफॉल्ट गेटवे इज दिस, और कोई टाइप का मैसेज यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। राउटर विल ड्रॉप दैट मैसेज। ऑल्सो यू नीड टू हैव डिफॉल्ट गेटवे देयर। तो हम लोग यहाँ पे भी डिफॉल्ट गेटवे कर लेते हैं, पी के बदले 2.4। डिफॉल्ट गेटवे का सबनेट मास्क आपने राउटर पे ही दे दिया होगा, राइट? फास्ट फॉरवर्ड टाइम पे मैं आ जाऊँ, रियल टाइम मोड, फास्ट फॉरवर्ड। रियल टाइम मोड में जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ आर दे कम्युनिकेटिंग और नॉट। एक बार इमीडिएटली फेल आ जाए तो डोंट वरी, आपको उसको क्या करना है, ये पूरे साइकिल पे फिर से क्लिक करना है। हाँ 2-3 बार करो, फेल आ रहा है इट मीन्स के हाँ कोई एरर है। अगर सक्सेसफुल आ रहा है तो क्लियरली वो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है। तो ऐसे आप एक you can build a small simple network there, right? Okay, any doubt,
Any doubt regarding to this? Yes, any doubt? Is it clear? Is this clear? Don't know whether you can hear me or not. Is it clear? Okay. To one student only. Right. Okay, so I hope that you are using Packet Tracer. Is it there in your laptop or machine? Okay. So those who are having it, I'm just giving you one experiment right now. Okay. So what you can do is you take, जैसे मैंने बनाया, आप सिंपल ही नेटवर्क में आपको दे रहा हूँ, कुछ इतना टफ नहीं दे रहा हूँ, पर आपको क्या करना है, you take 5 machines here, 5 machines at one side, you connect them all with a switch, right? You can take 5 machines at the other side also. And connect with switch, and then connect them with a network layer device and check whether they are communicating or not. Also, I'm not giving you any network ID. It is up to you to decide a network ID here, that which network ID you will use here, which network ID will you use here. It is up to you. How you are also configuring default gateway, let me know. Okay. So we will meet after 15 minutes. Up to this, if you have any doubt, you can ask me. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, this exercise you need to complete today. Okay, clear? Yes or no? Fifth one is not connecting. What fifth one? Where? You share your screen. Okay, sir. Because this is why I'm giving you this experiment. Yes. Yes, it is visible. You just no. You just keep your cursor on switch. You just keep your cursor on switch. Okay. You just take a cursor from that. Yes, right. No, you close this. Close this. Do not click. Just keep your cursor there. Yes. Yes. 1, 2, 3. Okay. You can add one more port, but for right now, I will not suggest you that. You just click on network devices. जो राउटर स्विच वो सब है ना, उस पर क्लिक करो. You just go to switch. हाँ, अभी उसमें आप कोई भी एक, yes, वो ले लो, 2960 ले लो. हाँ, you keep your cursor there. You keep your cursor. Yeah, 24 ports are there, I hope. Yes. वो रिमूव कर दो, ये रख दो. 2960 इज जेनरिक. दोनों साइड पे ये रख लो. ठीक. और राउटर पे भी कर्सर रखो. ओके, बंद कर दिया.
सर राउटर पे भी सेम करना है? राउटर पे कर्सर रखो तो। हाँ, एक सेकंड। कितने हैं? हाँ, 3 है, 3 गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट है, तो 3 नेटवर्क एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। हमको तो यहाँ पे 2 ही कनेक्ट वही करना है, करना कोई है। प्रॉब्लम हाँ। नहीं होगा। हम्म। ये सारी चीजें मैं जैसे जैसे नेक्स्ट में अभी अगर आपको पोर्ट्स और वो सब बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। तो शो दैट आई एम नॉट शोइंग यू, वो 6 या 7 जब राउटिंग अल्गोरिदम में पढ़ाओगा तब मैं करूंगा आप वो ओके सर। पूरा। राइट राइट, यू आर गोइंग ग्रेट। तो आप ये करो, अभी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन एरर आएगी, जब एरर आएगी तब समझ में आएगा कि क्या मिस कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है। राइट, चलो आपको 10 या 15 मिनट आप ले लो। दिस इज फॉर ऑल, ओके। मैं किसी को भी बोलूंगा यू शेयर योर स्क्रीन। See, until and unless you will see, जब तक आप ये कम्युनिकेट नहीं करोगे, राउटर नहीं लोगे, कनेक्ट नहीं करोगे, स्विच नहीं लोगे कनेक्ट, तब तो आपको क्लियरली जो समझ में आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो वो एक चीज है जो आपको करनी है कि आप अपने हिसाब से नेटवर्क, जब मैं आपको कुछ नेटवर्क आईडी दूंगा, जैसे ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है सर, व्हाट इफ वी डोंट हैव पैकेट ट्रेसर, आपको इंस्टॉल करना है, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं डाउनलोड करके आपको, पर वो मैं आपको पाथ शो कर सकता हूँ कि कहाँ से आप डाउनलोड, इट इज फ्रीली अवेलेबल। पर कोई बात नहीं, आप इस लैब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट लैब से अगर आपको आप लेके आओ, मैं आप डाउनलोड करके। राइट, अगर आप और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो सर अभी इतना डेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक तक चलेगा, डोंट वरी। तो अब अभी के बाद सी, आज आज भी इतना कुछ इतना जरूरी नहीं है, पर मैं कुछ कुछ लोग हैं जिसके पास है तो वो लोग करे, तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो सबके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। बट नेक्स्ट लैब ऑनवर्ड आप डाउनलोड करके पैकेट ट्रेसर रखो, तो क्या होगा कि इसके बाद, जैसे मुकेश सर अभी आपको जो पढ़ा रहे IPv4 हेडर, उसके बाद ARP आएगा, ARP ARP के बाद वो डायरेक्टली राउटिंग अल्गोरिदम आएंगे। तो जब आपको राउटिंग अल्गोरिदम आएंगे, उस टाइम पे मैं शो करूंगा, पैरेलली आपको भी करना पड़ेगा। वो आपको जब मैं पूरा नेटवर्क दूंगा, उसके बाद और एक चीज होगी कि आपको आपके हिसाब से नेटवर्क आईडी और ये सब फाइंड आउट करके एक टोपोलॉजी क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, तो आप कोई बात नहीं, फॉर टुडे देयर इज नो इशू। राइट, जिसके पास है वो लोग करते जाए, जिसके पास नहीं है एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत रीड कर लो कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, या तो अभी डाउनलोड मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
Okay. Just for a progress kind of thing, अगर आपको याद है तो मैं आपको बोल दूं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में RS-232 के बारे में हमने कुछ बात की थी. देन वी वेंट फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट. तो मैंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपको ये पूरा केबल कैसे क्रिएट करना है और वो वीडियो थ्रू आपको थोड़ा बहुत शो किया था, कलर कोड कैसे मैच होता है ये सब. देन वी वेंट फॉर बीट स्टफिंग एंड बाइट स्टफिंग, कैरेक्टर स्टफिंग. ये पूरा पैटर्न आपने किया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये किया था, राइट. उसके बाद मैंने आपको ये सब
लास्ट लैब में मैंने आपको ये सब शो किया था कि रिपीटर कैसे वर्क करता है, हब कैसे वर्क करता है, स्विच कैसे वर्क करता है, ब्रिज कैसे वर्क करता है, राउटर कैसे वर्क करता है, और हर एक के बारे में डिटेल में मैंने आपको बहुत कुछ बात की थी कि कैसे कनेक्ट करना है ये। एंड फिफ्थ एक्सपेरिमेंट जो आपका है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस। मैं नॉर्मली जब मैं लैब में फिजिकली होता हूँ तब मैं बोर्ड पे लिख के आपको ये सब, अगर हम लोग जल्दी में है तो इस बार क्या हुआ कि ये टॉपिक ऑलरेडी क्लास में कवर हो चुका है, तो मैं फिर से वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, और मैंने कुछ बातें आपको बोल दी, जैसे सबनेट मास्क कैसे होगा है, उसको कैसे लिखना है, एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेसेस आएगा, आप हाउ कैन यू डिसाइड दैट कौन सा आईपी एड्रेस आपको लेना है, कौन सा नेटवर्क आईडी लेना है, वो भी आपको अभी मालूम है कि टेक एंड ऑपरेशन हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस हो गया, आपका सबनेटिंग हो गया है, सुपर नेटिंग अभी के लिए छोड़ दो, सुपर नेटिंग इज नथिंग, आई डोंट नो वेदर इट इज डन और नॉट सुपर नेटिंग, बट इट्स लाइक रिवर्स ऑफ सबनेटिंग। आपके पास जैसे दो नेटवर्क है और दोनों नेटवर्क जैसे 192.168, मैं नॉर्मली यही एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको याद रहे, 1.0/25 ये एक सबनेट है, ओके, और उसी का एक सबनेट है, उसका ही सब पार्ट है सेम 192.168.1.128। तो आपको मालूम है कि जहां से ये नेटवर्क खत्म हो रहा है दूसरा नेटवर्क शुरू हो रहा है, बट आई हैव सबनेटेड इट, और आई हैव वन राउटर, और उस राउटर पे मेरे पास दोनों नेटवर्क कनेक्टेड है ऐसे। तो राउटर में मैं दोनों की अलग अलग एंट्री रखने के बदले मैं क्या करूंगा, एक ही एंट्री रखूंगा, ओके, समवेयर। हाँ, मैं बोलूंगा उसको सुपरनेटिंग काइंड ऑफ थिंग। मैं उसके एक वर्डिंग है जो आपके बुक में लिखा है, उसको सुपरनेटिंग बोलते हैं, उसका वर्डिंग कैन नॉट रिकॉल इट, पर अभी जैसे याद आएगा मैं आपको बोलूंगा। पर सुपरनेटिंग इज जैसे आप सबनेटिंग करते हो, बोरोइंग बिट्स फ्रॉम होस्ट बिट, सुपरनेटिंग वही चीज है कि बोरोइंग बिट्स फ्रॉम नेटवर्क बिट्स, राइट। नेटवर्क के लिए जैसे आप होस्ट से बोरो करते हो, सेम चीज आपको रिवर्स अगर आप करो कि एक नेटवर्क का दो नेटवर्क के एक नेटवर्क बनाने के, तो आपको एक नेटवर्क में से एक बिट बोरो करना पड़ेगा। दैट इज सुपरनेटिंग। उसके बाद तो ये पूरा सॉरी, ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कितने होस्ट रहेंगे, ओके, ये मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है। ये सारी चीजें आपने क्लास में पढ़ ली है, तो मैं इसीलिए इसको डिटेल में मैंने फिर से बात नहीं की। व्हाई डू वी नीड टू डेवलप सबनेटिंग, ये पूरा क्लास में शो हो गया होगा आपको। सबनेट एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है, एक बार मैंने भी आपको बोला था कि कैसे सबनेट आईपी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और जो 6 एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की, अभी तक मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कैसे पैकेट ट्रेसर यूज करना है। 6 एक्सपेरिमेंट मैं लास्ट 20 मिनट्स में आपके लिए डिस्कस करूंगा। स्टडी ऑफ बेसिक नेटवर्क कमांड एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कमांड। नेटवर्क जैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो तो कैसे, मैंने आपको छोटा नेटवर्क दिया और उस पर कॉन्फ़िगर करने के लिए इसलिए बोला कि आप जो प्रीवियस क्लास में लैब में मैंने जो बात की थी आप भूल ना जाओ, ओके। अब उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, नेटवर्क कमांड कैसे होते हैं, वो सारी चीजें मैं अभी आपको शो करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिंग, ट्रेस रूट, all command need to configure network, which includes how switch to privilege mode or normal mode, or how to configure router interface, and this everything I'll talk about in much detail actually, don't worry। तो हर एक के लिए मैं पूरा जितना भी पॉसिबल होगा डिटेल में जाके आपको शो करूंगा। पर आई सजेस्ट जब भी आप मेरे लैब में आओ तो एटलीस्ट एक नोट और पेन लेके बैठना कि एटलीस्ट कुछ लिख पाओ, या तो आप पैरेलली कॉन्फ़िगर करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ वो, ठीक है। तो आपका पैकेट ट्रेसर आप रेडी रखो, मैं जैसे ही वर्क करते जाता हूँ आप वैसे ही वर्क करते जाओ। ट्राई करो समझने की, जब भी आपको लगता है कि ओके समथिंग इज आउट ऑफ बाउंड, समथिंग इज आउट ऑफ हेड, उसी टाइम पे पिंग कर दो कि सर ये गलत हो रहा है कि या कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, या तो आई मिस द ट्रेन, आप कुछ भी लिख दो तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं वापस आके फिर से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। किसी ने कर दिया एक्सपेरिमेंट, किसी का कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो रहा हो, कोई भी
You just write here in chat. Okay, you share your screen. Roll number 28. मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है. चलो कुछ नया सीखने को मिलेगा सबको. पर 5 मिनट्स में मैं करता हूँ. एक्चुअली क्या वो बंद कर दिया था मैंने. मैं कर रहा हूँ 5 मिनट. अरे ठीक है. एक बार आईपी एड्रेस में सेट कर. Yes, Ayush, you share your screen. Hello, sir. Is it visible? आएगा आयुष, थोड़ी देर लगेगी, आएगा. It is visible now. वो लोड हो रहा है. Yes, sir. Done. गुड. चलो शो करो. चलो सिमुलेशन मोड पे जाओ तो आयुष. नहीं, ये नहीं करना है अभी. अभी आप कोई भी सिंपल पीडीयू ले सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको ये नहीं करना है तो जल्दी हो जाएगा. यस, वेरी गुड. ये कैप्चर एंड फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, आपके पैकेट कहाँ से कहाँ जा रहा है आपको समझ में आएगा. ठीक है. Yes, sir. करेक्ट. राइट. सक्सेसफुल. यस, डन. इट्स डन. वेरी गुड आयुष. और कोई है जिसने किया हो? आई वॉन्ट समवन विथ एरर एक्चुअली. तो क्या हो कि मैं थोड़ा बहुत मैं बोल सकूँ कुछ. Sir, can you guide through the process? व्हाट? Sir, can you help me with this transmission because it is not working हाँ across the. तभी आप शेयर करो. मैं बोल रहा हूँ आप शेयर करो. इट्स ओपन नाउ फॉर यू. यू शेयर इट. ओके. नहीं कुछ नहीं चाहिए. ओके. देखो पहले एक चीज समझ लो. ये पूरा आपका जो नेटवर्क है, दिस फॉर एवरीवन, राइट. ये पूरा आपका नेटवर्क में, उसमें आप रेड कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, उसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है. ठीक है. अब राउटर पे जैसे ही रेड आए तो एक चीज समझ लो कि वो केबल जो है वो उसका जो पॉट है वो ऑफ है. क्या है वो? ऑफ है, शट डाउन. आप राउटर पे रखो कर्सर. वो डाउन दिखा रहा है आपको. हाँ. ठीक है. लिंक Down. आपका कैसा है? डाउन है. वो डाउन नहीं होना चाहिए, वो अप होना चाहिए. अब स्विच पे रखो कर्सर. देखो कितने अप दिखा रहा है, कितने डाउन दिखा रहा है. जो ग्रीन है वो अप है, जो नहीं है वो सब डाउन है. तो पहली चीज के वो ऑन होना चाहिए. आपने कोई गलती नहीं की है, डोंट वरी. आप सिर्फ एक क्लिक भूल गए हो, पर इससे आपको कुछ बहुत सारी चीजें समझ में आएगी. ओके. अभी आप कर्सर पे जाओ. अरे सॉरी, राउटर पे जाओ. राउटर पे कर्सर रखो सिर्फ. अब देखो आईपी एड्रेस देख लो. आपका आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर नहीं है. ठीक है. तो आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर नहीं है और ऑन भी नहीं किया तो कम्युनिकेट नहीं होगा. अभी आप मुझे बोलो कि आपने इस साइड कौन सा नेटवर्क लिया है, दूसरे साइड कौन सा नेटवर्क लिया है, वो बोलो सिर्फ. सर अभी मैंने वहाँ सेट नहीं किया है. मैंने वापस बनाया ना. मैंने पहले बनाया था आईपी एड्रेस डाल के 192 सेट करके. ठीक है, आप कर दो वो. हाँ, ओके. वापस बाद में करता हूँ. अभी रखूँ कि मैं वापस करूँ शेयर? नहीं, कर लो आप. ये करने के बाद देखो ये पूरा करना होगा. उसके बाद हाँ. आपको डिफॉल्ट गेटवे जो दे रहे हो
वो राउटर पे, और राउटर पे क्लिक करो। एक सेकंड। हाँ राउटर पे जो भी आपका कॉन्फ़िग, ओके और वहां पे जो भी इथरनेट, कोई भी इथरनेट पे जाओ तो गीगाबाइट 0/0 सपोज, हाँ तो 0/0 में आपको क्या करना है, उसको ऑन करना है। आईपी एड्रेस ये सब देने के बाद ऑन करना है। ओके ठीक है, सर ये वो हो जाएगा। यस, एड्रेस कोई भी दे सकता हूँ मैं? नहीं, जो आप डिफॉल्ट गेटवे बनाना चाहते हो ओके 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 गॉट इट। उसी नेटवर्क का, और वो हाँ सभी मशीन पे सेम रहेगा, राइट ना, डिफॉल्ट गेटवे। हम्म। ओके, एनी अदर क्वेरी? और किसी ने नहीं किया है? सर मेरा एरर आ रहा है। यस ध्रुमिल, शेयर इट। जिन लोग को भी एरर आ रहा है वो सबसे पहले शेयर करो, तो क्या कि आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम, मैंने क्या गलती की, या बाय मिस्टेक क्या हो रहा है। यस ध्रुमिल, चलो शेयर कर, मैसेज करो, पास करो, चलो मैसेज। इन प्रोग्रेस, डबल क्लिक करो इन प्रोग्रेस पे। यस, उस पर डबल क्लिक करो। कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, ये जो कैप्चर प्ले कंट्रोल है ना, प्ले कंट्रोल कहाँ लेफ्ट है? हैंड साइड पे देखो, हाँ उस पे राइट वाला जो नेक्स्ट हम लोग करते हैं ना, यस, वन बाय वन क्लिक करो। ओके, फिर से क्लिक करो। ठीक है, फिर से क्लिक करो। ठीक है, फिर से क्लिक करो। ठीक है, फिर से नेक्स्ट, अगेन क्लिक इट। ओके, सर ठीक ठीक, समझ में आ गया। अभी आप ना, ये हाँ अभी आप उसको डिलीट कर दो। ठीक, उधर वो एक एक जो मैसेज है ना, उसमें जो छोटा मैसेज है, जो पीडीयू, ये हाँ बस वो लो। नहीं वो नहीं, ये कि अच्छा ऐड ये कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल पीडीयू। हाँ ठीक, अभी पीसी 0, जो कोई भी एक पीसी से दूसरे पीसी पे भेजो। ये वाला। हाँ कोई बात नहीं। अभी ओके, अभी कैप्चर एंड फॉरवर्ड करो, मतलब वो नेक्स्ट वाला जो, उसको कैप्चर एंड फॉरवर्ड बोलते हैं नॉर्मली इन टेक्निकल टर्म। ठीक, नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट, ठीक, जा रहा है। ओके, ठीक, नेक्स्ट। ये देखो आपका स्विच उसको ब्रॉडकास्ट, अभी 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 नेक्स्ट मत करना, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है उसको लेना है कि नहीं लेना है। हाँ अभी जो आपका जो लास्ट, जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन, अभी रियल मोड में आ जाओ, कोई बात नहीं। अब उसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो मशीन है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो डेस्टिनेशन मशीन है उसके आईपी एड्रेस में कुछ गड़बड़ी है। अब अच्छा उस पर कर्सर रखो सिर्फ। ये इसके नहीं, लास्ट कोई जो जो जहाँ पे आप डेस्टिनेशन में, सबसे ऊपर वाला, यस वो पीसी, क्या आईपी एड्रेस दिया है उसको क्लिक करो, उस पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाओ। हाँ, 193.3.3.5 डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिया है उसका, तो वापस नहीं जा पाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ वो दे दे। चलो एक बार दे दो, क्या दिया, कर्सर रखो उधर, जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कर्सर रखो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो आईपी एड्रेस आपने दिया है, थ्री अब डॉट इस साइड थ्री का डॉट कौन सा है आपको सिक्स मालूम है? हाँ वेरी गुड। नहीं नहीं, हाँ वो यस तो मैं यस, चेंज कर ओके दूँ। ओके ओके, ठीक, राइट। अब करके देखो। हाँ 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 कर, या सक्सेसफुल। ठीक नहीं ठीक, हो फेल गया। आ गया। नहीं वो पहले वाला था, आप डिलीट करके फिर से करो, एक जो सक्सेसफुल आया वही है। नहीं वो नहीं, कॉम्प्लेक्स पीडीयू नहीं करना है आपको। हाँ सॉरी सॉरी। कॉम्प्लेक्स मैंने इसलिए कि आपको वो समझा पाऊँ, एमटीयू आ गया सक्सेसफुल, हम्म उधर जाने की जरूरत नहीं है, देख लो उधर आ गया। हाँ ओके। ठीक है ना, सक्सेसफुल। और कोई इसको एरर आए तो बेटर है। चलो भाई, कोई आओ एरर के साथ। वेरी गुड फाइनल, चलो शेयर करो।
इसके बाद रोल नंबर 139 को शेयर करना है, ठीक है। 5 Hello sir, is it visible? यस विजिबल, यस फैनिल विजिबल। फैनिल का जैसे ही खत्म होता है 105 का जैसे ही खत्म होता है 139 को प्रेजेंट करना है। ओके हम लोग आएंगे ये खत्म करने के बाद। आप ओके बोलो क्या एरर आ रहा है। आप रियल मोड पे आ जाओ, पहले रियल मोड पे क्लिक करो, राइट। ओके कोई कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, चलो ग्रीन हो गया सब। पहले तो एक काम करो फाइनल, Yes पहले sir. जो टाइम दिखा रहा है ना, टाइम नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे जो टाइम दिखा रहा है, कनेक्शंस और राउटर हम लोग लेते हैं उसके ऊपर ब्लू लाइन में, यहाँ आप जो राउटर और केबल्स जो ले रहे हो, स्विच और मशीन वो सब, हाँ उसके ऊपर देखो डबल एरो कुछ दिखाई दे रहा है आपको? Yes sir. उस पर क्लिक कर दो एक बार सिर्फ। फास्ट फॉरवर्ड टाइम सबको याद रखना है, ये है आपका फास्ट फॉरवर्ड टाइम। कर दिया क्लिक? Yes sir. अभी ये जो पैकेट है ना, सब सिनारियो 0 लिखा है और सब पैकेट है, उसमें डिलीट कर दो उसको। ओके अभी करो, अभी कोई एक मैसेज पास करो। ओके इन प्रोग्रेस। अभी वो डिस्क पे क्लिक करो, जो फेल आ रहा है ना उसके पास, ये नहीं डबल क्लिक करो उस पे, रेड और ब्लैक है जो रेड एंड ब्लैक दिखाई दे रहा है, उस पे डबल क्लिक करो, फिर से करो। नाउ इट इज श्योर कि वहां पे कुछ एरर है। अभी सिमुलेशन मोड पे चले जाओ। मैं आपको शो कर रहा हूँ कैसे आप एरर फाइंड आउट करोगे। अब ये जो टैब खुला उसको बंद कर दो, वो नहीं चाहिए हमको, ठीक है। ओके अभी यस नेक्स्ट जाओ, चलो फॉरवर्ड कंट्रोल ये करो, कैप्चर एंड फॉरवर्ड, ठीक। नेक्स्ट ठीक है, आपका स्विच करेक्ट काम कर रहा है, राउटर तक पहुंचा, राउटर ने डिस्कार्ड कर दिया वहां से। तो आपने राउटर को क्या आईपी एड्रेस दिया है वो देखो, पहले राउटर पे आओ, पहले रियल मोड पे आ जाओ, ठीक है। राउटर पे आओ, देखो आईपी एड्रेस आपने क्या दिया है, 3.192 68.3.1. ओके। अब ये मशीन पे देखो क्या दिया है आपने, गेटवे आपने गलत दिया है, 3.1 ही दिया है, 192.6.3.1 दिया है। Yes sir. ओके पर उसका आईपी एड्रेस आपने क्या दिया है, 0.1. वो कैसे काम करेगा? देखो आपका नेटवर्क आईडी इस जो आपके राउटर का गेटवे का आईपी एड्रेस है और ये जो मशीन का आईपी एड्रेस है, वो दोनों तो अलग अलग नेटवर्क में हो गए। Yes sir. Yes. हाँ तो वो सेम नेटवर्क का होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो तो आपको राउटर पे भी चेंज करना पड़ेगा, राइट ना? Yes sir. हाँ पर ये फिर हो जाएगा क्लास 2 का। तो आपका सबनेट मास्क ध्यान से देना, जो सबनेट मास्क आप ले रहे हो सभी जगह पे वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना? सिक्स 4.1 दिया है आपने, तो यहाँ पे भी 4.1 कर दो। नहीं 1.6 4.1 और 1.6 कैसे? ठीक नहीं देखो आप पहले ये डिलीट कर दो, ये सारे पैकेट डिलीट करो। अभी एक बात समझो, एक बात समझो आप, Yes sir. जो नेटवर्क आईडी रहेगा वो सेम रहेगा पूरे नेटवर्क के लिए। तो आपका जो राइट हैंड साइड जो नेटवर्क आईडी है वो सेम रहेगा, ठीक है। अभी आप कर्सर है ना वो राउटर पे रखा है, तो उसमें देखो 192.68.0.1/25
तो उसका मतलब ये होगा कि फास्ट इथरनेट 0x0 पे ये नेटवर्क कनेक्टेड है। तो इसके अंदर जितने भी मशीन से आईपी एड्रेसेस आते हैं वो जो कनेक्टेड है वो इसी नेटवर्क के रहेंगे, ठीक है। उसी तरह फास्ट इथरनेट 0x1 पे आपने दिया है 192.168.1.1। अभी आप इस साइड आओ, वो जो पीसी है ना उस पे क्लिक करो, नहीं राइट हैंड साइड, ये है 1.6 और उसका गेटवे 4.1 क्यों है, तो डिफरेंट नेटवर्क हो गया। यस सर, गेटवे में चाहिए जी सर। हाँ तो वो उसी नेटवर्क का आप ले लो। 1.6 है तो आपने क्या दिया है, 1.1 दिया है। देखो पहले राउटर पे क्या दिया है, यस 1.1 दिया है, अभी काम करेगा सबको 1.1। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो ये दो मशीन्स पे। अभी अभी PC3 से वहां पे मैसेज पास करके देख लो। हाँ इसका आईपी एड्रेस नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी अभी इधर नीचे आओ और उसको रेड और ब्लैक है उधर डबल क्लिक करो वो डिस्क पे। यस इट्स डन राइट। अभी सभी में आपको ये चेंज करना है। ओके सर। Who is next? 102 अरे इधर। सर आपने जो बोला था वो कर दिया मैंने, इसके आगे आप थोड़ा देख लो। जस्ट अ सेकंड, मैं 102 का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, देन कम बैक टू यू। यस 102 अरे इधर। यस यू शेयर योर स्क्रीन। तो फिर 142 या 142 विराज आप रेडी रहना इसके बाद। जस्ट 2 मिनट सर। ओके ओके। इज देयर एनीवन हु कैन शेयर द स्क्रीन इफ हैव डन एनीथिंग? Roll number 114 Meet Shah, are you there? Meet, are you there? Roll number 114, are you there? मैं एब्सेंट लिख दूं यार, हो क्या नहीं हो। 114 रोल नंबर 114 मीत शाह। I hope that at least you can hear me. Hello sir. Yes, Sir, I am ready now. I will share your screen. Okay. Yes, Meet, you are next to present. Sir, is this visible? Yes, visible. Yes, sir. हेलो। Yes, yes. बोलो अभी क्या error आ रहा है? यस सर, फेल दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फेल दिखा रहा है। ओके डिलीट कर दो सब। ठीक है चलो सिमुलेशन मोड पे आ जाओ। एक नया ही मैसेज ले लो। अमित शाह इट्स ओके, इट्स ओके। ओके ठीक ठीक। ओके 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 नेक्स्ट। ओके आगे नहीं जा रहा है ना? हाँ यहाँ से आगे नहीं जा डिलीट सबको डिलीट करो फिर से एक पैकेट पे 142। हाँ डिलीट करो सबको। नहीं ये नहीं, कंट्रोल Z करो। कंट्रोल Z करना था क्योंकि पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका चला जाएगा।
रियल मोड पे आ जाओ चलो। या ओके और ये पैकेजेस जो है उसको जब मैं डिलीट बोलूँ तो आपको ये पैकेट डिलीट करने हैं सिर्फ। ये सिनारियो लिखा है उसके ये बाजू में देखो, हाँ नीचे जो डिलीट, ये हाँ अच्छा हाँ हाँ ओके 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 सिनारियो हाँ के नीचे जो डिलीट है, हाँ या वो या डिलीट करना है, मैं ओके वो बोल रहा ओके ओके यस सर नाउ हूँ। फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर दो एक बार, इधर इधर इधर, यहाँ पे हाँ ठीक, ये इधर। ठीक, अभी राउटर पे आओ। क्लिक मत करो सिर्फ, ओके ये पूरा आईपी कॉन्फ़िगरेशन आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके देखो, तो मैं कर यस जस्ट अ सेकंड, आप इस साइड लेफ्ट हैंड साइड मशीन पे कोई भी एक मशीन पे लेके आओ। तो आपका आईपी एड्रेस है 123 ना, यस तो डिफॉल्ट गेटवे अलग क्यों लिखा है, अलग नेटवर्क का क्यों लिखा है? सर डिफॉल्ट गेटवे मतलब ये सब मशीन का सेम होगा ना? हाँ, पर वो उसी नेटवर्क तो में से सब होगा। मतलब सर मतलब अभी अभी आप शेयर स्क्रीन बंद कर दो, चलो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन और मैं कुछ लिखता हूँ आप लोग समझने की, जो मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो, ठीक है। वो यस होना ही चाहिए। यस जब मैंने पहली बार when I went into it, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ सर वो मतलब क्लियर नहीं हो रहा है गेटवे का नहीं, ऑप्शन। वेरी गुड कि आप यू रेज दिस क्वेश्चन। इज माय स्क्रीन विजिबल, इज इट देयर माय स्क्रीन, मैं एटलीस्ट यू कैन, ओके। अभी थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करो, ठीक है। मैं पूरा डिलीट करके आपको शो करता हूँ कि जो आप लोगों ने जो मिस्टेक किया है वो थोड़ा बहुत ट्राई करो कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैं कुछ एक छोटा बहुत सिनारियो ले लेता हूँ, मैं पूरा कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगर करके शो नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने कर लिया है, पर हम लोग ट्राई करते हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड इट, ओके। व्हेन वी कनेक्ट ए मशीन विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेंगे, अगर कुछ बात हमको ऐसा लगे कि भाई चलो उसको थ्रू एग्जांपल समझते हैं, तो क्या हो सकता है वो सब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मैं कोई भी नेटवर्क आईपी अभी कॉन्फ़िगर नहीं करता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, मैं कोई कुछ चीज कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नेटवर्क देके बोल रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ओके। अब जब जब आप ऐसा नेटवर्क ले रहे हो, ओके, ये सब ग्रीन होते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन होते हैं, ओके। तो सपोज मैंने कोई नेटवर्क ले लिया, ठीक है, और नेटवर्क में मैं बोल रहा हूँ कि भाई आई विल हैव ए नेटवर्क like 192.168.12.0/24. What it means? It means that if I want to represent this network, this entire network, okay, इस राउटर के ये पोर्ट के इंक्लूडिंग दिस पोर्ट, ओके, ये पूरा नेटवर्क, उसमें जहां पे भी मुझे होस्ट की जरूरत पड़ी या तो आईपी एड्रेस की जरूरत हो, in that case I can utilize one IP address from this, okay. तो मैं यहाँ पे ओके, टू आइडेंटिफाई दिस होस्ट आई नीड आईपी एड्रेस, टू आइडेंटिफाई दिस होस्ट आई नीड आईपी एड्रेस, टू आइडेंटिफाई दिस होस्ट आई नीड आईपी एड्रेस। स्विच के लिए वी डू नॉट नीड एनी आईपी एड्रेस। पर जो राउटर का एक पोर्ट होता है, राउटर इज नथिंग बट नेटवर्क लेयर डिवाइस, तो नेटवर्क लेयर पे वी नीड वन आइडेंटिफिकेशन नंबर है नेटवर्क लेयर, ओके। तो हम लोग आईपी एड्रेस यूज करते हैं, तो वी नीड आईपी एड्रेस हियर, ओके। अब स्विच से मैं दूसरे लॉजिक से आपको समझाता हूँ। स्विच से जितने भी मशीन्स कनेक्टेड हो गए, कोई भी एक स्विच ले लो, उससे जितने भी मशीन्स कनेक्टेड हो गए, कोई भी मशीन में ले लो, तो दे कैन ओनली कम्युनिकेट इफ दे आर फ्रॉम सेम नेटवर्क, दे मस्ट बी फ्रॉम सेम नेटवर्क, ओके। एक चीज हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा नेटवर्क लिया और सबको आईपी एड्रेस देने स्टार्ट किया। तो अब मैं जा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ 192.168.12.0, तो 0 मैं कभी नहीं ले सकता, और लास्ट आईपी एड्रेस उसका रहेगा 12.255, तो वो भी मैं कभी नहीं ले सकता बिकॉज ये ब्रॉडकास्ट रहेगा।
तो वैलिड आईपी एड्रेस कितने हैं मेरे पास? 1 से लेके 254 तक वैलिड आईपी एड्रेस है। तो अगर मुझे किसी ने ये नेटवर्क आईडी दिया तो उसमें मैं सिर्फ 254 यूनिकली आइडेंटिफाइड होस्ट दे सकता हूँ। ठीक है, ये तो फिक्स है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक होस्ट, एक आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज 12.1, ये मैंने ले लिया 12.1। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12.2, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12.3। ओके, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। तो ये जो पोर्ट है, मैं राउटर की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग राउटर को आईपी एड्रेस नहीं दे रहे अभी, राउटर के एक पोर्ट को आईपी एड्रेस दे रहे हैं। कौन सा पोर्ट है? तो ये पोर्ट रहा वो। तो उसको जब आईपी एड्रेस देना पड़ेगा तो वो कौन से नेटवर्क में से आएगा? फ्रॉम दिस नेटवर्क, 12.0 में से। तो 12.1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, यू जस्ट टेक इट एज एन होस्ट। मैं इसको दे रहा हूँ 12.4। अब आप मान लो ये एक पोर्ट है, उसको आईपी एड्रेस, ये उसी नेटवर्क में से आएगा। ये क्लियर हुआ? इतना समझ में आ रहा है? ओके, तो 12.1 मैंने यहाँ पे लिया, 2 यहाँ पे लिया, 3 यहाँ पे लिया, 4 यहाँ पे लिया। ओके, नाउ इफ आई वांट टू पास ए मैसेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस नेटवर्क, ये पूरा मेरा नेटवर्क है। अभी मैं इसको एक अलग कलर के से आपको समझा दूं। ये पूरा एक नेटवर्क है। अब जितने भी इस स्विच के साथ या इसमें कनेक्टेड हो गए, सब एक ही नेटवर्क में रहेगा। अब व्हेन आई वांट टू पास ए मैसेज आउटसाइड ऑफ दिस नेटवर्क, आई नीड ए नेटवर्क लेयर डिवाइस। तो मैंने राउटर तो रखा हुआ है। ओके, तो हर एक को जैसे उसको आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क मैसेज पास करना है, तो आप देखो वेयर इज द वे, आप यहां से जा सकते हो। तो सभी मशीन जितने भी in this network, what we are doing is we are giving one default gateway. Default gateway is the way you can pass a message outside of the network. अब इसको बाहर मैसेज भेजना है तो कहाँ पे भेजना चाहिए? अगर तो इसको इधर से स्विच को भेजना चाहिए, then switch must pass the message to router, और राउटर डिसाइड करे कि भाई किस टाइप पे जाना है। अगर इसको भी भेजे तो इधर इधर, इसको भी भेजे तो इधर इधर। देयर इज ओनली सिंगल गेटवे टू गो आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क। तो सबका गेटवे सेम होना चाहिए, मैं वही बोल रहा हूँ। और वो जो गेटवे, ये क्या है? ये पॉइंट रहा वो उसी नेटवर्क का होना चाहिए जो आपका नेटवर्क का है वो। तो आपका गेटवे क्या है? यहाँ पे जो आपने आईपी एड्रेस दिया है वो, तो इसका गेटवे क्या आएगा? 12.4। इसका भी गेटवे क्या आएगा? 12.4। इसका भी गेटवे क्या आएगा? 12.4। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। One 102, is it clear? यस सर। थोड़ा बहुत सर, समझ में आया? हाँ सर, लेकिन राउटर का आईपी एड्रेस कहाँ दिख रहा है? नहीं, वो पोर्ट पे दे रहे हैं ना अभी। ओके, मैं बात करता हूँ उसके बारे में। चलो, पर यहाँ तक समझ में आया आपको? यस यस, यहाँ तक क्लियर हुआ सर। To everyone this, but the question is so that I ask, is it clear? Ayush, Fanil, Yes. is it clear? Okay. अभी तो इसको यहाँ पे मैसेज देखो, राउटर को आप मैसेज कैसे पास करोगे? तो राउटर को एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। वो कहाँ पे देंगे हम लोग? तो यू कीप योर कर्सर हियर। तो ये देखो क्या लिखा है, गीगाबाइट 0x0 उस साइड पे। तो ये जो गीगाबाइट 0x0 पोर्ट है, इसका मैं आपको शो करूँ फिजिकल में जाके। ये रहा आपका पोर्ट्स, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सारे उसके पोर्ट है। उसमें से गीगाबाइट 0x0 जो पोर्ट होगा वो इस स्विच के साथ कनेक्टेड होगा RJ45 से। ठीक है, तो गीगाबाइट 0x0 ये इसका आईपी एड्रेस है। मैं लिखूंगा 192.168.12.4 और उसको ऑन कर दूंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसको भी मैसेज बाहर भेजना है वो 12.4 पे मैसेज भेजो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अभी मैं इसका आईपी एड्रेस लिखूं, अभी आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि 12.2 सपोज। डिफॉल्ट गेटवे में क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 192.168.12.4।
What it means, जैसे मैं ये लिखता हूँ, what it means that whenever I have a message on this machine where I want to pass that message outside of my network, तो उसको default gateway पे भेजना है मुझे। तो मैं कहाँ पे भेजूंगा? डायरेक्टली इधर। इसका डिफॉल्ट गेटवे मैंने लिया नहीं है, तो जब दूसरे नेटवर्क का मैं मैसेज पास करूंगा, माय मशीन विल नॉट एबल टू डिसाइड कि भाई किधर भेजना है। इवन आई डोंट हैव माय डिफॉल्ट गेटवे, तो मैं डिस्कार्ड हो जाएगा। तो एवरीवन शुड हैव डिफॉल्ट गेटवे व्हेन यू वांट टू पास और यू वांट टू कम्युनिकेट आउटसाइड ऑफ योर नेटवर्क। ठीक है, तो मैंने 12.4 इधर लिखा, सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 192.168.12.3 सॉरी, डिफॉल्ट गेटवे में ले रहा हूँ 192.168.12.4। इसको कोई आईपी एड्रेस में सपोज दे रहा हूँ 192.168.12.1, तो इसका डिफॉल्ट गेटवे ले रहा हूँ 192.168.12.4। ठीक है, तो अभी सारे मशीन्स के लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या रहा ये? इट मीन्स आप आउटसाइड ऑफ, तो एक ही राउटर आपके नेटवर्क में रहेगा, आपके नेटवर्क में बहुत सारे राउटर नहीं रहेगा, एक ही राउटर रहेगा जो आपके पूरे नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो यही एक पॉइंट है जहां से आप बाहर जा सकते हो, या तो कोई आपके नेटवर्क में आ सकता है। ठीक, राइट। नाउ इफ आई टेक अनदर नेटवर्क हियर, सिंपल नेटवर्क ही ले रहा हूं, मैंने पहले भी यही लिया था, फिर से वही ले रहा हूं। इट्स लाइक मूवी, आप जितनी बार देखो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक, अगेन मैं कनेक्ट कर रहा हूं। फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर दूं, जल्दी खत्म हो जाए। ठीक, मैं उसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, और सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नेटवर्क 13.0 192.168.13.0/24। इट मीन्स दैट 13.1 से लेके 13.254 तक कोई भी आईपी एड्रेस में दे सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ कि भाई सपोज माय आईपी एड्रेस इज 192.168.13.5 13.2 से स्टार्ट करता हूँ। चलो अभी के लिए डिफॉल्ट गेटवे में ले रहा हूँ 13.1, उसको दूसरी हिसाब से मैं शो कर रहा हूँ। मैंने फिक्स कर दिया 13.1 इज माय डिफॉल्ट गेटवे। 13.1 is my default gateway. ये फिक्स कर दिया मैंने। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि यहाँ पे जब भी कोई मैसेज आएगा तो 13.1 पे जाएगा, बट आई हैव नॉट असाइन 13.1 टू एनीवन। कहाँ पे मुझे असाइन करना चाहिए? ये पोर्ट पे। अभी आप देखो राउटर के दो पोर्ट है, उसमें से 1 0/0 इस साइड पे एंड 0/1 इज दिस साइड। ओके, मैं अगर मैं कर्सर रखूँ तो समझ में आएगा। गीगाबाइट 0/1, तो मुझे ये राउटर पे जाना है, गीगाबाइट 0/1 और गीगाबाइट 0/1 को ऑन करना है। ऑन करो तो ग्रीन हो जाएगा, इससे कम्युनिकेट नहीं होगा। और उसका जो आईपी एड्रेस है वो मुझे देना है 13.1। अभी ये कम्युनिकेट करेगा। तो आप देखो दैट फॉर दिस नेटवर्क ये राउटर का एक पोर्ट इस साइड पे है और राउटर का दूसरा पोर्ट इस साइड पे है। तो ये एक पूरा नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क पूरा 12.0 का है। इट मीन्स दैट यहाँ पे जितने भी मशीन्स हो गए सबका यूनिकली आइडेंटिफाई आईपी एड्रेस रहेगा और वो रहेगा 12.0 नेटवर्क का। इट मीन्स 192.168.12.1 से लेके 12.254 तक, इतने तक रहेगा। सेम चीज यहाँ पे रहेगी, 13.0 का नेटवर्क रहेगा। तो कोई भी मशीन आप लेके आओ 13.1 से लेके 13.254 तक, आप मैक्सिमम इतने ही मशीन आपके पास हो सकते हैं होस्ट। ओके, और सबका डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे रहेगा और यूनिकली आइडेंटिफाई आप कर पाओ, इसका डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे रहेगा।
default gateway is a point which you are assigning one IP address from that network uniquely identify करने के लिए. और वो कब यूज होता है जब आपको मैसेज आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क पास करना आता है. See, when you want to communicate inside network, you do not need any default gateway. You do not need one router there at least. You need a switch or hub, which makes connection between machines. Is that clear? बहुत ग्राउंड लेवल पे जाके मैं शो कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट. इज दैट क्लियर? ओके, लेट हो रहा है मतलब नहीं समझ में आया कि आया समझ में? हेलो, नो वन इज देयर? Yes, Ria is okay, clear. Okay. Now I got responses. Right. ठीक. Okay. Okay, that's it for today. If you have any doubt, you can just let me know. Otherwise, आप आज से या कल आप जब आपको टाइम मिले, यू कैन डाउनलोड पैकेट ट्रेसर. मैं आपको साइज बोल दूं कितने साइज का है पैकेट ट्रेसर.